cosec theta. Means value of sin theta equals to 3/5. Then we have to find the remaining ratio. In short, remaining ratio. First we write method number first. Sin theta is equals to 3/5. अभी by using my identity बताने वाला हूँ. Then sin square theta plus cos square theta that is equals to 1. इसके पीछे रीजन क्या होगा कोई बता सकता है? Yes, by using trigonometric identity. इसका रीजन क्या होगा? sin square theta plus cos square theta equals to 1. ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि by using trigonometric identity. फर्स्ट लेक्चर में भी बताया मैंने, सेकंड लेक्चर में भी बताया. sin square theta plus cos square theta equals to 1. Then what is the value of sin theta? Sin theta equals to, we write 3/5 it whole square plus cos square theta that is equals to 1. Then what is the value of 3? 9 divided by 25 plus cos square theta equals to 1. ओके, अभी ये प्लस में राइट हैंड साइड जाने के बाद में माइनस होगा. cos square theta equals to 1 minus 9 by 25. Then we take cos square theta equals to, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का है. 1 into 25 25 minus 1 into 9 9 1 into 25 25. Then cos square theta equals to, we write 25 minus 9. Then we get 16 upon 25. अभी ये that is value of cos square theta, but we have to find the value of cos theta. अभी यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको मालूम है स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. Then cos square theta that is equals to 16 upon 25. Then taking square root on both sides. Taking square root on both sides, then we get cos theta equals to 16 का square root 4, 25 का 5. Then we get value of cos theta. जो आपका first answer है. We have to find the value of cos theta. We also find tan theta, cot theta, sec theta. अभी यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन आएगा आपको sin theta 3/5 है. If it is mentioned that is theta in second quadrant, यहाँ पे सोचने की बात है. then what is the value of cos theta? ओके, कल मुझे बताइए ये cos theta का वैल्यू क्या आएगा और क्यों आएगा, इसके पीछे रीजन क्या है. if it is lies in second quadrant then cos theta का वैल्यू नेगेटिव आता है. इसके पीछे रीजन क्या है नेगेटिव आने के पीछे, ये आपको सोचने का है. ओके, then cos theta equals to 4/5. then next is that tan theta equals to, इसके पहले ही मैंने रिलेशन बताया, sin theta divided by cos theta. Then what is the value of sin theta? Sin theta का वैल्यू कितना है आपका 3/5. Then cos theta का वैल्यू कितना है 4/5. Then 5 get cancel. Tan theta equals to, we write 3/4. Cot theta, tan theta का वैल्यू कितना मिला आपको 3/4. अभी sin theta आपके पास है. sin theta equals to 3/5. cos theta equals to, cos theta का वैल्यू क्या है आपका 4/5. tan theta equals to 3/4. अभी ये रेसिप्रोकल मैंने कहा है. sin के अपोजिट कौन सा है? cosec theta equals to 5/3. sec theta equals to 5/4 और cot theta equals to 4/3. Okay, then we have to find the value of cos theta, then tan theta, then cot theta, then sec theta, then cosec theta. ये मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया. दैट इज योर फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड में मैंने क्या यूज किया है? दैट बाय यूजिंग आइडेंटिटी. और सेकंड मेथड में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी कर सकते हैं. मैं आपको सेकंड मेथड भी यहाँ पे बता दूंगा. सेकंड मेथड क्या है? ओके, फर्स्ट दिस मेथड बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ये मेथड कौन से मेथड से किया है? बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ठीक है, अभी यही प्रॉब्लम मैं आपको मेथड सेकंड से बताता हूं.
this is your right angle triangle and this is your angle theta. Okay, and y x r. अभी sin थीटा का वैल्यू क्या आता है आपका? सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालो, दिस इज योर 90 डिग्री, देन r आपका क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूज, और ये कौन सा साइड रहेगा? फ्रंट साइड, और ये कौन सा साइड रहेगा? एडजेसेंट साइड. ओके, देन दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अभी मुझे बताओ sin थीटा क्या आएगा आपका? y डिवाइडेड बाय r, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. अभी यहाँ पे आप एक कांस्टेंट भी एनी कांस्टेंट की कंसीडर करके भी कर सकते हैं. अभी मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y का वैल्यू आपका कितना आता है? 3. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r का वैल्यू कितना आता है? 5. ओके, देन वी राइट r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. इसका रीजन कोई बता सकता है क्या? बताओ. इसका रीजन है बाय यूजिंग पाइथागोरस theorem. Yes, by using Pythagoras theorem. मैंने क्या किया? r square equals to x square plus y square. By using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem का मैंने यहाँ पे यूज किया है. r square की वैल्यू 5 square that is equals to x square plus y की वैल्यू कितनी है? 3 square. 5 का स्क्वायर 25, x square 3 का स्क्वायर 9. 25 equals to ये प्लस में राइट हैंड साइड आने के बाद में माइनस में x स्क्वायर. 25 minus 9 16, that is equals to x square. Then x की वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4. ओके, दैट इज वैल्यू ऑफ x. अभी फर्स्ट रिलेशन क्या था? sin थीटा इज इक्वल्स टू वी टेक 3/5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा? इसके अपोजिट रेसिप्रोकल, दैट इज इक्वल्स टू 3/5. कैन टेल मी दैट cos थीटा इक्वल्स टू, cos थीटा में कौन सी साइड आती है? एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड कौन सा है आपका? x, और हाइपोटेन्यूज r, दैट इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड आ गया आपका 4/5, और cos के अपोजिट कौन सा रहता है? sec थीटा इक्वल्स टू वी गेट 5/4. ओके, sin थीटा cosec थीटा, cos थीटा sec थीटा, then is that tan theta equals to we get y divided by x. अभी y का वैल्यू क्या है आपका? y का वैल्यू 3 है, और x का वैल्यू कितना है? 4, और tan के अपोजिट क्या होता है? cot theta equals to 4/3. ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे आपको बताया था sin theta equals to 3/5, then find the value of cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta. मेथड नंबर 1 मैंने आपको कौन सा बताया है? बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. मेथड नंबर 2 मैंने कौन सा बताया है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अभी ये आप कौन से भी मेथड पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक अराइज यहाँ पे होता है कि अगर एग्जाम में मेंशन किया है, इफ इट इज मेंशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी, इफ इट इज मेंशन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर मेंशन है तो आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, अगर मेंशन है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व करने का है. ओके, दैट इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम, sin थीटा इक्वल्स टू 3/5. देन गो टू सेकंड प्रॉब्लम. Next is that sin theta equals to 7 divided by 25. Sin theta equals to 7 divided by 25. 7 divided by 25 आएगा, और then we have to find value of cos theta, उसके बाद में tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta. Means in short all trigonometric ratio. First is that sin theta equals to 7 divided by 25. sin theta का वैल्यू आपका क्या है? 7/25. गिवन है, ये आपका क्या है? गिवन. मैंने कुछ भी नहीं किया, जो प्रॉब्लम में दिया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7/25. देन sin square theta plus cos square theta that is equals to 1. इसके पीछे आएगा
by using, बताओ, trigonometric आइडेंटिटीज। अभी मैंने दो मेथड बताया आपको, कौन से दो मेथड बताया, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको दो में से एक मेथड सॉल्व करने का है। और एक बात और बता रहा हूं, इफ इट इज मेंशन, अगर मेंशन है तो आपको वही मेथड से सॉल्व करने का है। ओके, नेक्स्ट इज दैट sin का कितना आता है 7/25 इट होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, दैट इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर कितना आता है 49 और 25 का 625 प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू। ओके, अभी आपको cos का वैल्यू निकालने का है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में लेके जाओ। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 minus 49 divided by 625. Then cos square theta equals to cross multiplication of, then we get 1 into this 625 minus 49 divided by 625. Then cos square theta equals to, ये आपका 625 and this is your 49. Okay, then 56, then 576. ये आपका कितना आएगा 576 divided by 625. ये that is the value of cos square theta. ये आपका कौन सा वैल्यू आ गया cos square theta. Then taking square root on both side, square root on both side. ये आपको पता चल रहा है मैं स्क्वायर रूट क्यों ले रहा हूं? यस, क्यों? क्योंकि मुझे cos square theta का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे cos theta का वैल्यू चाहिए। तो cos theta का वैल्यू आएगा 575, किसका स्क्वायर रूट है, then we get 24 divided by 25. फर्स्ट वैल्यू यहां पे आपको मिल गया cos थीटा 24 divided by 25। फर्स्ट sin मिल गया, cos मिल गया। ओके, अभी आप ये tan निकालने का है। tan आप कैसा निकालेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू राइट sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। और सेकंड भी यूज कर सकते हैं, कौन सा बता सकते हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी है 1 plus tan square theta equals to sec square theta। ये आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंपल है, tan theta equals to sin by cos। sin का वैल्यू आपको मालूम है, sin का वैल्यू कितना है 7/25 और cos का वैल्यू कितना है 24/25। 25 get cancel, that is equals to 7/24, that is value of tan theta। फर्स्ट sin थीटा आपका क्या दिया है 7/25, तो cosec थीटा इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा आपका 25/7। नेक्स्ट इज दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा का वैल्यू क्या है आपका 24 divided by 25, then what is the value of sec theta, इसका रेसिप्रोकल 25/24। then tan theta equals to right 7 divided by 24, then cot theta equals to right 24 divided by 7। ओके, क्वेश्चन क्या था कि sin theta equals to 7/25, then cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta। means in short we have to find remaining ratio। remaining ratio find किया है मैंने कौन से मेथड से किया है, by using trigonometric identity। आपको कौन से मेथड से सॉल्व करने हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आप मुझे सॉल्व करके दिखा देंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से कैसे सॉल्व करने का है, सेकंड मेथड से सॉल्व करो, उतना ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is that if you have to given tan theta equals to 3/5, question is right, tan theta equals to 3/4, then find the values of sec theta, find the values of sec theta, find the values of sec theta and cos theta।
ओके, आपको गिवन में क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/5। गिवन, जो गिवन में दिया है राइट एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करने का। गिवन में दिया है tan थीटा इक्वल टू 3/4। अभी यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकाल दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसका रीजन क्या है, बाय using trigonometric identities। ओके, मैं फर्स्ट जो लेक्चर ले चुका हूं उसमें पूरा रिवाइज किया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसके बाद में इन विच क्वाड्रेंट विच रेशियो इज पॉजिटिव, sin थीटा, रिलेशन बिटवीन sin एंड cosec, रिलेशन बिटवीन cos एंड sec, रिलेशन बिटवीन tan एंड cot। ओके, ये याद करते जाओ थोड़ा 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 थोड़ा। देन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये आपका रीजन क्या होगा, हमने रीजन लिख दिया है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 1 प्लस tan का वैल्यू क्या है 3/4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, दैट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लो, 16 plus 9 divided by 16 that is equals to sec square theta। then 16 plus 9 कितना आता है 25 divided by 16 that is equals to sec square theta। रीअरेंज करो, रीअरेंज मींस व्हाट, पहले मैं आप sec square theta लेता हूं और बाद में क्या लेता हूं 25 divided by 16। रीअरेंज किया, मैंने क्या किया रीअरेंज किया। देन मुझे वैल्यू कौन सा चाहिए sec थीटा का, कौन सा चाहिए sec थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब इस sec का एज इट इज आएगा sec थीटा और 25 का स्क्वायर रूट आता है 5 और 16 का क्या आता है 4। Value of sec theta equals to 5/4। We have to find sec theta. We have to also find cos theta. Relation between sec and cos क्या है, मैंने आपको बताया है, इसका रेसिप्रोकल डायरेक्टली ले लेगा 4/5। Means if you have to give tan theta equals to 3/4, then we have to find the value of sec theta and cos theta। इसके लिए मैंने क्या किया है tan theta equals to 3/4, क्या किया है कुछ भी नहीं, गिवन में है तो गिवन लिख दिया। देन उसके बाद में आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अभी आपका यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, सर ने आइडेंटिटी यही क्यों यूज की है यहाँ पे, तो कितने आइडेंटिटी है 3 आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। वी सी हियर प्रॉब्लम में आपको वैल्यू कौन सी दी tan थीटा की और सेकंड आइडेंटिटी में tan है, इसकी वजह से मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज किया है। देन 1 plus tan square theta equals to sec square theta, then we get that is that cot theta equals to then 14/9। find the values of cosec theta and sec theta। आपको क्या दिया है cot theta equals to write 14/9, ये मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या दिया जो डाटा दिया है cot theta equals to 14/9। we have to find the cosec theta sec theta। मेरे पास 3 आइडेंटिटी है, फर्स्ट इज दैट sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा equals to 1 plus tan स्क्वायर थीटा equals to sec स्क्वायर थीटा, 1 plus cot स्क्वायर थीटा equals to cosec स्क्वायर थीटा। ओके, अभी वैल्यू किसका दिया है cot, cot किस में आता है आपका थर्ड आइडेंटिटी में, तो आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करने का थर्ड आइडेंटिटी क्या है आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। इसका रीजन मैं क्या बताऊंगा, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कुछ भी नहीं किया, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 1 प्लस cot थीटा का वैल्यू 14/9 that is equals to we get cosec square theta। then cross multiplication लो, 9 plus
40 divided by 1 plus cot theta का वैल्यू क्या है आपका 14 by 9 it whole square that is equals to cosec square theta 1 plus 40 का स्क्वायर कितना आता है 1600 by 89 that is equals to cosec square theta okay 40 into 40 then we get this 4 कितना आता है 6 then cross multiplication लो 81 plus 1600 divided by 81 that is equals to cosec square theta abhi then we get 1681 divided by 81 that is equals to cosec square theta rearrange means what आपको क्या करने का है अरेंज करने का है cosec theta is equals to we get 1681 divided by 81 cosec square theta then taking square root on both side आपका क्या आएगा स्क्वायर रूट आएगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 1681 किसका स्क्वायर रूट है आपको निकालने का है cosec theta equals to write this 81 किसका है 9 का then we get 41 into 41 1 then 4 plus 1 4 plus 16 then we get 1 8 16 81 means that is the square root of this 41 okay then cosec theta equals to we get 41 divided by 9 आपको cosec theta की वैल्यू मिली है then we have to find sec theta अभी sec theta आप कैसे निकाल सकते हैं सेकंड आइडेंटिटी यूज करके भी निकाल सकते हैं सेकंड आइडेंटिटी कौन सी है 1 plus tan square theta equals to sec square theta लेकिन tan theta कैसा यूज करने का है tan theta के लिए cot theta दिया है cot theta is equals to we get 14 by 9 then we get tan theta equals to 9 divided by 14 क्या किया मैंने बस रेसिप्रोकल then 1 plus tan square theta is equals to sec square theta इसके पीछे रीजन क्या है by using trigonometric identities okay then we get 1 plus tan का वैल्यू कितना है 9 by 14 into whole square that is equals to sec square theta 1 plus 9 किसका आता है 81 divided by 40 किसका आता है 1600 that is equals to sec square theta cross multiplication लो 1600 plus 81 divided by 1600 that is equals to sec square theta अभी 1600 plus 81 means 1681 divided by 1600 that is equals to sec square theta then rearrange में ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखने का है sec square theta equals to we write 1681 divided by 1600 मुझे किसका वैल्यू फाइंड करने का है sec theta का यहाँ पे स्क्वायर आया then taking square root on both sides taking square root on both sides then sec square theta का sec theta आएगा और इसका स्क्वायर रूट आएगा 41 divided by 40 that is value of sec theta ये वैल्यू किसका है sec theta का है first we write this cot theta equals to 40 by 9 find the values of cosec theta and sec theta then cot theta equals to 14 by 9 that is your given 1 plus cot square theta equals to cosec square theta ये क्यों यूज किया है by using trigonometric identity बाकी ये कैलकुलेशन पार्ट है उसके बाद में मैंने कौन सा वैल्यू निकाला है cosec अभी cosec का वैल्यू निकालने के बाद में we have to also find the value of sec theta के लिए cot theta का वैल्यू given दिया है तो cot theta को मैं क्या करता हूं tan theta equals to 9/40 tan is given then by using second identity 1 plus tan square theta equals to sec square theta by using also trigonometric identity and that is your calculation part then we find the value of sec theta that is your 41/40 okay that is your next problem
नेक्स्ट इज दैट, देखिए 5 sec theta minus 12 cosec theta equals to 0. Then we have to find the value of sec theta, cos theta and sin theta. Okay, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 sec theta, ये माइनस में राइट हैंड साइड देने के बाद में प्लस cosec theta. ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है, मैंने माइनस को राइट हैंड साइड लेके जाने के बाद में क्या किया, प्लस किया. Then we get 5 sec means what, 1 upon cos लिख सकते हैं हम. Okay, then 12 cosec means what, 1 upon sin theta लिख सकते हैं. Okay, then अब ये डिवाइड में sin नहीं करा के मल्टीप्लिकेशन में, then we get sin by cos, that is equals to, this is your 12 by 5. But sin by cos, that is equals to, क्या है बताओ, tan theta. Yes, very good, tan theta. Then we get tan theta equals to 12 upon 5. tan theta की वैल्यू मिलेगी एक वैल्यू मिलने के बाद में बाकी के वैल्यू इजी है. फर्स्ट क्या निकालेगा, sec और tan मालूम है तो कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, सेकंड. यस, 1 plus tan square theta, that is equals to sec square theta. इसमें क्या आएगा, by using trigonometric identities. Okay, by using trigonometric identity. 1 plus, what is the value of tan? Tan का वैल्यू कितना है, 12 upon 5. It whole square, that is equals to sec square theta. 1 plus 12 का स्क्वायर कितना आता है, 144 और 5 का 25, that is equals to sec square theta. Cross multiplication लो, 25 plus 144 divided by 25, that is equals to sec square theta. Then 4 5 कितना आता है, 9, 6 169 divided by 25, that is your sec square theta. Rearrange means पहले मैं लिखता हूँ sec square theta equals to 169 divided by 25. Then taking square root on both sides. Taking square root on both sides. Square root क्या आएगा कि sec as it is 169 30 25 5 13 by 5. ये किसका वैल्यू मिल गया आपको, sec theta. Then we have to also find cos theta. Sec theta equals to, right, 13 by 5. Sec के opposite आएगा cos theta, 5 by 30. Next is that we also find sin theta. आपको sin theta भी निकालने का है तो आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. tan आपको मालूम है, tan से भी यूज कर सकते हैं. tan थीटा का वैल्यू बताओ क्या रहता है, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा. ओके, देन ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लिकेशन में होगा tan थीटा इनटू cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू sin थीटा. देन tan थीटा का वैल्यू है आपका 12 बाय 5 इनटू cos थीटा का 5 बाय 30, that is equals to sin theta. Then 5 get cancel, sin theta equals to 12 divided by 35. Okay, ये आपका प्रॉब्लम था. ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है. फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक पूरा कंप्लीट कर दिया. उसके बाद आज प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिए, कुछ 4-5 प्रॉब्लम हो गए, लेकिन कल के डेट में और थोड़े से इससे एडवांस प्रॉब्लम ले लेंगे. और थोड़ा सा एक काम करने का है कि जो मैंने बेसिक पढ़ाया है वो थोड़ा रीड करते जाओ. ओके, कल के पीरियड में ये थोड़ा सा रीड करने के बाद में आपको आइडेंटिटी कौन कौन से है, उसके बाद में हाउ टू कन्वर्ट दिस साइन इनटू कॉस, कॉस इनटू साइन, उसके बाद में आपका टेबल याद रखना चाहिए. कल मैं टेबल के प्रॉब्लम लेने वाला हूँ आपको, तो कल के डेट में आप थोड़ा सा रीड करके लीजिए सब पार्ट. ओके.